Okay, so this is the finite difference formula which we are using from last all lectures. So this was the earlier floating point method, but this time we are not generating any random number. So what we do this. Let us say, okay, M, and, okay, layout blank. Okay, so this is our grid. Let me just make it no fill borders, all borders. Okay, okay. Let us say that this is our desired point, ijth point. So for that, I draw a um, circle here. Okay, and I will put this circle on a point here. Okay, so let us say we want to calculate the temperature on this point. So how we can do? And let us say that this is a boundary which has some temperature. This is another boundary which has some other temperature. Third boundary has third temperature. Fourth boundary has a fourth temperature. So what we will see that the probability of moving to the neighboring point from this point is 1 by 4 this side, 1 by 4 this side, 1 by 4 this side, and then 1 by 4 this side. Suppose from here we reach this point, and from this point probability is half, sorry, 1 by 4, 1 by 4, and 1 by 4 to the reverse, and 1 by 4 hit this side. And from here this point, 1 by 4 this side, 1 by 4 this side, 1 by 4 this side, 1 by 4 this side. So after first step, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 probability on these four sides. Okay, let us say I will arrange this 1 by 4 here. Okay, 1 by 4 here, and 1 by 4 here, 1 by 4 here. ठीक है. And here the probability the so what we do, we see that, let us say there are some particles, we call them particles, uh, at this point, and 1 by 4 particle reached this point, and then 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, and from this point 1 by 16 particle reached this point, 1 by 16, 1 by 16, 1 by 16. So like these particles are propagating, and from this route, one particle 1 by 4, 1 by 16, 1 by 64, and then 1 by 128, 256, 512. So these many particles reach here. Okay, and similarly from this route again particles reach there, 1 by 5 and 12, or maybe plus 1, and then from this route, from this route, from this route, and from this route, sorry, from this route, and this route, and from this. Likewise, there are many routes, and also the particles will reach like this. So we propagate particles along this grid, and depending on the route, the particles will propagate and reach the boundary. And when they reach the boundary, I will calculate that from this point, let us say 10 to the power 7 particle starts, and total 10 to the power 7 particles should reach ideally at this boundary, but let us say 90% particles reach this boundary, and 10% particles are still inside somewhere.
So we calculate all these points, all these particles on this boundary, and then calculate particles on this boundary and then divide by total number of particle, that is the one, and multiply by the temperature. Similarly, particles on this boundary divided by total number of particle multiplied by temperature on this boundary, and then same particle on this boundary and then divide by total number of particle, and then temperature of this boundary, and then particle on this boundary divided by total number of particle multiplied by temperature of this boundary. So this is the final, and sum of these all four temperature will be the final temperature on this point. So this is, from this point, what is the probability that temperature will reach from boundary 1 to this point? That is same way of means stating the thing, like the temperature from the boundary 2 to reach this particles, temperature from the boundary 3 to reach this particle, and temperature from the boundary 4 to reach this particle. Did you get it? Okay. Please tell me. Please tell me if you get it. Huh? Okay, okay. Or I. कुछ भी. It is just random number. 10 or 7 is just a number. One particle or any number of particles. 10 or 6 particles. Okay. Then, हाँ, yes, बोलिए बोलिए. बोलिए. नहीं नहीं. मीन्स देखिए, मेरा ये है जैसे जैसे कि अ, मेरा ये है कि देखिए यहाँ से पार्टिकल चले, ठीक है ना, तो किसी ना किसी बाउंड्री पर तो पहुंचेंगे. ठीक है, बाउंड्री की कंडीशन है कि बाउंड्री पर पहुंचने का पार्टिकल वापस नहीं आएगा. ठीक है, तो जो पार्टिकल बाउंड्री पर पहुंच गया वो पहुंच गया, अब वो वापस नहीं आएगा. लेकिन यहाँ से वो यहाँ पहुंचा तो वापस इस पॉइंट पर भी आ सकता है और इस पॉइंट पर भी आ सकता है, फिर इधर वाले से इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है. सेम इधर से इधर जा सकता है, लेकिन जो इधर इधर वाले पॉइंट से इधर पहुंच गया अब वो वापस नहीं आएगा. तो धीरे धीरे जो पार्टिकल है वो बाउंड्री में जमा होते जाएंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन कि उस बाउंड्री तक पहुंचने की जो पाथ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पाथ ले लूं और माइट I might take this path also, this, going down and then going this and then this and then this. So it is very less probable path. But directly going from this to this is a highly probabilistic path. Similarly, so the probability of going to the top boundary from the center point is much higher compared to all other boundaries. So we are now actually numerically evaluating what is the probability of reaching to any boundary, final probability, because we know that 1 by 4 is the probability of reaching the neighboring points. But then from the neighboring points, it will go to their neighboring point, and from that point, it goes to their neighboring point, and finally it reaches the boundary, like that. And when it reaches the boundary, that many particles will take that temperature. And if I divide that temperature divided by total number of particles, I will get the probability of reaching the particle to that boundary, and then the effect of that temperature on that given point. Manish, Arun, did you get it? Okay. And Kaustubh, because this is the basic idea. And Shubhamar, huh? Get it? Okay. So this is called as the exodus method. Exodus means that all the particles from the concerned point move outward,
and no particle remains on that point in that iteration. Okay, and from the next point it happens again. All particles move outwards. Exodus means बाहर की तरफ निकलना, बाहर निकलना. Okay, या पलायन जिसको हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, सारे पार्टिकल इधर उधर. लेकिन इस चीज में आप देखेंगे कि इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है, ऑल द पार्टिकल्स विल रीच दिस, दिस, दिस और दिस, एंड नो पार्टिकल रीचेस इन द कॉर्नर. इस मेथड से कॉर्नर में पता नहीं चलेगा टेम्परेचर, बिल्कुल कॉर्नर में. ठीक है ना, पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि ये जो मेथड है, हाँ, ये रैंडम नहीं है. इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो फिक्स्ड आएगा हमेशा. दैट में कन्वर्ज and that may not converge, but it is always fixed. ओके, तो प्रोग्राम देखते हैं इसका लाप्लास इक्वेशन के लिए. ओके, देखिए सबसे पहले मैंने पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल 10⁻7 ले लिए. इसका कोई फर्क नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली वी आर यूजिंग द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स आल्सो. ओके, but sometimes people don't use fraction of particles and they want to use more particles. I can also take one here, and that will be divided and it will become probability automatically. Okay, and max is the number of exodus steps. How many exodus steps you are taking means how many time you are calculating from one to another, one to another, one to another, like that. Okay, you got this? What is this exodus steps? So this is the, in the first step, the particle will reach here 1 by 4. In the second step, the particle will go to their negative neighboring point. So I am taking the 100 steps. So 100 times the particle from the one particle is distributing. So that the book recommends 2000 exodus steps. Okay. But since there is not enough time, I take 100. Okay. अच्छा. नो नो, रैंडम नहीं आएगा इसमें. जो रैंडमनेस मोंटे कार्लो में आता है ना, वो नहीं आएगा. वो जो भी नम, हाँ. हाँ, मोंटे कार्लो नहीं है ये, मतलब रैंडम नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है ये. प्रोबेबिलिटी है इसमें. ओके, एंड एक मैं आपको रन करा के दिखा दूं, एक मिनट, जस्ट जस्ट मोमेंट. ओके, कोलन कॉमा 0 इज इक्वल टू T1 and 0 is T2. Colon comma -1 is T3 and -1 is T4. ओके, सॉरी. हाँ, देखिए करा क्या है मैंने. सबसे पहले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए, 100 इटरेट करवा रहे हैं हम लोग, जो स्टेप्स हैं. फिर dx dy ले लिया हमने कि क्या हमारा dx dy. फिर x min और x max, y min y max जैसे पहले लिया है. फिर m और n निकाल लिए, अभी तक सेम चल रहा है. फिर टेम्परेचर ले लिया 0. फिर पार्टिकल अब लिए मैंने, एक मैट्रिक्स बनाया जो कि 0 पार्टिकल सब जगह लेता है, मतलब अभी पूरी ग्रिड में कोई भी पार्टिकल नहीं है. फिर एक्स वेक्टर वाई वेक्टर बना लिया और हमारी बाउंड्री कंडीशन दे दी कि फर्स्ट बाउंड्री क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है. देखिए फर्स्ट बाउंड्री जो मैंने मानी है ना, वो वर्टिकल है ऐसे, और जो सेकंड बाउंड्री है वो हॉरिजॉन्टल है, ये वाली टॉप. और थर्ड जो है वो इधर वाली वर्टिकल है, फोर्थ वाली नीचे वाली बॉटम वाली है. फर्स्ट सेकंड पे 100 टेम्परेचर है और थर्ड फोर्थ पे 0 0 है. अब ये इसकी तो कोई जरूरत नहीं है अभी. ठीक है ना, और आप रख लो तब भी एक ही बात है. पी एक्स
एन। ठीक है, पी एक ही बात है, ये 4 से डिवाइड करना है या 0.25 से मल्टीप्लाई करना। अभी देखिए, अभी क्या करा, ये आई और जे जो है नंबर, ये हमारा आई कॉमा जेथ पॉइंट है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने हमारा जो पार्टिकल जो वेक्टर था उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर लिया, ये इंश्योर करने के लिए कि पूरे ग्रिड में कोई भी पार्टिकल नहीं है। फिर हमने हमारे उस, ओके 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 ओके, कैन यू सी रिपीट, आई शैल आई रिपीट? Okay, so first of all, I take the particles, number of particles that we will take that as a starting point for any point, and max is the 100. Max is the number of steps I am taking over all these grids. So 100 times I am repeating this step, this process. Huh? And dx dy, they are the x step and y step, and these are our boundaries. X is equal to 0 and x is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1. So this is a rectangle of 0 1 and 0 1। x in x में भी एक है, y में भी एक है, और dx dy 0.02 है। एंड देन टेम्परेचर अभी निकाल लिया मैंने कि जीरो, पूरे ग्रिड में जीरो माना हुआ है मैंने। और पार्टिकल जो है वो शुरू में जीरो है, मतलब कोई भी पार्टिकल नहीं है किसी ग्रिड में। फिर एक्स वेक्टर वाई वेक्टर निकाल लिया हमने। अब T1 T2 T3 T4 ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है। टी जो है ये टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन है, और T2 जो है वो लेफ्ट वर्टिकल लाइन है। T3 राइट, सॉरी नहीं नहीं, T1 लेफ्ट वर्टिकल लाइन है, T2 हॉरिजॉन्टल टॉप लाइन है, T3 जो है वो राइट वर्टिकल लाइन है, T4 बॉटम लाइन है। ओके, लेफ्ट लाइन, टॉप लाइन, राइट लाइन, बॉटम लाइन। ओके, एंड दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। एक किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने की प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है ना। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पॉइंट जो है। अब देखिए, हमने हमारा जो कंसर्न पॉइंट है आई कॉमा जे वो सिलेक्ट कर लिया पहले। आई पॉइंट एंड जे पॉइंट इस फॉर लूप से एक्स करंट वाई करंट इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे, ठीक है। अब पार्टिकल को जीरो से मल्टीप्लाई कर लिया। अब करंट पॉइंट जो है, करंट पार्टिकल मतलब पॉइंट पर एन पार्टिकल डाल दिए हमने, जो इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो ले लिया हमने। अब सबसे पहले हमने एक ओल्ड, अब क्या करेंगे, करा हमने इसको नंबर ऑफ 100 टाइम्स इसको रन करा रहे हैं, 100 टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले एक ओल्ड मैट्रिक्स में मैंने ये वाला मैट्रिक्स सेव करवा लिया है। क्या है ये मैट्रिक्स? जीरोथ रो छोड़ दिया है एंड -1 रो छोड़ दिया, मतलब शुरू वाला रो छोड़ दिया, आखिरी वाला रो छोड़ दिया है। एंड सिमिलरली जीरोथ कॉलम छोड़ दिया है और -1 कॉलम छोड़ दिया है। मतलब कि इस वेक्टर के अंदर ये छोड़ दिया है, देखिए मैंने ये वाला, ठीक है ना। लेट अस से ये एंड सिमिलरली ये छोड़ दिया है। ओके, सॉरी, ठीक है, ये छोड़ दिया है। थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों पॉइंट छोड़ दिए हैं। ये क्योंकि चारों हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री कंडीशन इसमें डिफाइन किया हुआ है हमने, इसीलिए इन चारों को हमने छोड़ दिया है और सिर्फ बीच वाले एरिया को सिलेक्ट करा है मैंने ये, ठीक है ना। तो ये जो व्हाइट एरिया है ये ओल्ड के अंदर ले लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले पार्टिकल 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि जो जो व्हाइट पोर्शन है उसको सबसे पहले जीरो करवा दिया है, और इसकी वैल्यू
ओल्ड में कॉपी कर ली। देखिए मैंने स्पेसिफिकली कॉपी यूज किया है यहाँ पर, अदरवाइज क्या होता है कि ये असाइन हो जाता है और जैसे ही मैं इसको जीरो करता हूँ ऊपर वाला भी जीरो हो जाता है। ठीक है ना। अब क्या किया कि अब इस पार्टिकल्स को प्रोपेगेट करवा रहे हैं। देखिए :-2 एंड :-2। इसका मतलब ये है कि मैं ये वाले ग्रिड में हूँ, :-2 :-2 ये वाले ग्रिड में हूँ अभी, जिसका साइज व्हाइट वाले ग्रिड के जितना है। ठीक है ना। तो ये लेफ्ट लेफ्ट में प्रोपेगेट किया पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाई दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन होगा इसमें तो। हाँ यार गलत कर दिया मैंने, डायगोनली प्रोपेगेट करवा दिया ये तो मैंने। मुझे इधर लेना चाहिए था ना, ये वाला हिस्सा लेना चाहिए मेरे को ये। ठीक है। तो x में तो ये हो जाएगा x-2, और y में क्या रहेगा ये, y में वही रहेगा 1 - 1। ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए हम लोग। अब सिमिलरली पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएंगे। पॉजिटिव x डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट पॉइंट लेंगे हम लोग, ये वाला, वो ये वाला रहेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए पार्टिकल मूव करा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 1 - नहीं, ये 2 में आ जाएगा, ये 2 एंड 0, और 1 - 1 तो ये ऐसे ही रहेगा -1। ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए। अब y में जाएंगे हम लोग, तो अब x वाला सेम रख लेते हैं, एंड सिमिलरली 1 - 1, और y में ऊपर की तरफ चले गए। ये सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन। x वाला 1 - 1, 1 से -1 तक जा रहा है, और ये 0 से -2 तक, और सिमिलरली ये 1 - 1 और 2 से 0। प्रॉब्लम कोई इसमें, इज इट ओके। पार्टिकल प्रोपोगेट करवाने ना। देखिए 1/4 पार्टिकल, जो व्हाइट वाला ग्रिड था, ये वाला व्हाइट वाला जो ग्रिड है, एक मिनट, हाँ, ये जो व्हाइट वाला जो ग्रिड है, ये नीचे वाला, उसके 1/4 पार्टिकल मेरे को इस ऊपर ऊपर की तरफ पहुंचाने हैं, और सिमिलरली 1/4 पार्टिकल मेरे को नीचे की तरफ पहुंचाने हैं यहाँ पर, और सिमिलरली 1/4 पार्टिकल मेरे को यहाँ पहुंचाने लेफ्ट में, और ऐसे ही 1/4 पार्टिकल राइट में पहुंचाने हैं। तो इसको मैं फॉर लूप के अंदर भी कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे किया है। इसको बोलते हैं वेक्टराइजेशन मेथड। तो ओल्ड पार्टिकल का 1/4 ये चला गया लेफ्ट एक्स में, फिर राइट एक्स में, और लेफ्ट वाई में, मतलब टॉप में चला गया और बॉटम में चला गया। सही है। आरुण, ओके, पक्का ना, रन कराए। ओके, मैंने भी पहली बार रन करा रहा हूँ। अब लास्ट में क्या किया मैंने कि टेम्परेचर जो निकाला है, जो टॉप लाइन में जो पार्टिकल है, ये मतलब ये लेफ्ट लाइन में जो पार्टिकल है सम करके T1 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट लाइन में जो पार्टिकल है सम करके, नहीं ये, हाँ, नहीं ये टॉप लाइन है, टॉप लाइन में पार्टिकल में सम करके T2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट लाइन में T3 से, और फिर बॉटम लाइन में T4 से, और फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। सो दिस विल बी योर फाइनल टेम्परेचर। अरे आया क्यों नहीं फाइनल टेम्परेचर, कहाँ चला गया। ये तो बना दिया था मैंने, फिर आया क्यों नहीं।
ओके, दिस टाइम इट फेल्ड एक्चुअली। पिछली बार तो चला था ये, लेकिन इस बार ये आ गया 15 सेकंड के बाद। ओके, व्हाई इट हैपेंड? Old into PX and particle. ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, जब मैंने वो पहले बनाया था ना, उसमें चल गया था ये। एक मिनट, जिसमें डायगोनली मूव हो रहे थे पार्टिकल। हाँ, ओके, मे बी दिस वन। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। Okay, so this one was making some problem, and it is showing this temperature, and वही वाला लगा के देखते हैं फिर से, इसमें जो अभी लगाया था हमने। 1, -1। सिमिलरली इसमें भी कोलन, इसको 1, -1, -2। सॉरी, 1, -1, 2। ये चलना चाहिए। ओके, सो दिस इज वर्किंग ओके। लेकिन ये समहाउ ये करने पर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक बार ऐसे ही रन करा के देखते हैं सर। हाँ, सही तो है। ओके, आई गॉट दैट। कोलन कॉमा 0, कोलन कॉमा -1। ओके, so this is the current temperature, मतलब actual temperature distribution. You can see this, and if you see the particles, we can also see the particle. For one particle we can see, let us say
आई एम नॉट रनिंग फॉर ऑल द पार्टिकल्स बट फॉर द सेंट्रल पार्टिकल। ठीक है, कितना है देखिए, एम कितना है, एम है 50। ठीक है, तो 25th कॉमा 25th पार्टिकल के लिए देखते हैं हम लोग इसको, या 20th कॉमा 20th पार्टिकल के लिए देखते हैं। सॉरी, कैसा दिखता है। दिख भी नहीं रहा, लेकिन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा आपको। Okay, so you can see that all the particles have not reached to the end till now. Okay, 200 पर देखते हैं। Okay, some of the particles started reaching to the towards the end. Okay, okay, so most of the particle reached boundary 500 steps में, from the center. And but if I run for the 500 times, earlier it was how much times? 100, 75 सेकंड लगेंगे इसमें। ओके, रन करा दिया है मैंने। Oops. ओके, अब बताइए, क्या आपकी समझ में आया या नहीं आया? बिकॉज इट विल टेक मोर देन ए मिनट। बताइए। ये अब मैं ही खुद को समझा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। ओके, यस, ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई मेड अ मोमेंट। ओके, so it looks like it is more time consuming than the random walk. Okay, 75 seconds. So yes, it looks very much different from the earlier one, na? Because the particles from the center, they are not reaching the boundary in the earlier situation. So only you can see the temperature is in this portion only. So if I can write, let us say, कहाँ चला गया, this one. कहाँ चला गया? Um, okay, it is not saved yet. I have not saved it. Save the. Okay, this one. 74 सेकंड में रन हुआ है, बट इफ आई
Um, okay, and if I reduce this 500 to 100, then you will see in 15 seconds. See, see the difference? Can you see the difference? Because the particles which are here, they're still inside this. They're moving, but still inside, very much inside this mesh, and they're not reaching the boundary. And that is why you can see that temperature is limited to these boundaries only. And it suggests that I should use more and more numbers, like 1000 maybe. Then it will be 150 seconds, around 2.5 minutes. Okay, so by that time we can review the code again. Arun, okay, see. Can you see now? Do you want to ask something in this code? I will share this code also. हाँ, once again, okay. So सबसे पहले क्या किया that we have this particle matrix that is all zeros, and similarly temperature matrix is all zeros. Now what I did, सबसे पहले एक पार्टिकल जो करंट पोजीशन पर जो पार्टिकल है उसको हमने नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल्स दे दिए, जो कि 10⁻⁷ है, अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है. एंड देन I store the central portion, means except for the boundaries, except for this boundary. So what is this? Zeroth row, and this is zeroth column, minus one column, and minus one row. So except for these four rows and columns, I save this all these particles in a variable called old and copy it. Otherwise, it will make a map of this. And then I means emptied the central portion. Okay, and then I started moving the particles towards the left, right, top, bottom. You see this? This is left. Y position is same. X position, it is now starting from the zero. This was starting from the first row, and now the current one is starting from the zeroth row. Zeroth row is this, and first row is this. So this whole white portion shifted towards the left side, huh, in this code, and number of particles are 1/4. And similarly, this uh, this is the right side. Okay, let us see what is the result. Okay, it is not that much different, huh? Now you can see similar, but still you can see this is a dip here and it's not a dip here. Okay, it's just like straight line. Let us make it a run for a more number of particles, and save this number. This is for 1000 steps, and this is for 500 steps. Let's close this. Okay,
and I will run this for 2000 steps now. So this will run for 5 minutes. So, but here also the particle is moving randomly. It is not in a straight line. Not in a straight line, but not random, depending on the probability. They Okay. move left, right, top, bottom. And initially old means you are extending the boundary and you are assuming all particle in the center. यस, कॉपी उसमें कर दिया मैंने, क्योंकि क्योंकि ये एक्सोडस मेथड है, तो जो प्रेजेंट पार्टिकल है दैट शुड बिकम जीरो। जो आई जब आप मूव करते हैं ये इस पार्टिकल से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो दिस पार्टिकल विल बिकम जीरो। सो फॉर दैट आई ओनली कंसीडर द मूवमेंट, ओके, एंड उस पार्टिकल को जीरो बना दिया मैंने। ओके सर कॉपी से सर कॉपी करने से क्या होता है जैसे कॉपी करने से क्या होता है ना, देखिए जैसे ही कॉपी नहीं करोगे ना, जैसे ही यहाँ जीरो बनाओगे ना, ऊपर ओल्ड भी जीरो हो जाएगा। ओके एक्चुअली ये प्लस इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है मेरे को। प्लस इक्वल टू करने की जरूरत है क्या, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबको मैंने जीरो बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको प्लस इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, क्योंकि बगल वाले पार्टिकल को उधर भी आ सकता है ना। यस है। ओके, अब फिर जो बाउंड्री पर पहुंच गया पार्टिकल, उन सारे पार्टिकल, बाउंड्री वाले पार्टिकल्स को सम किया। जो लेफ्ट बाउंड्री है उसको T1 से मल्टीप्लाई किया, टॉप बाउंड्री के सारे पार्टिकल्स को T2 से मल्टीप्लाई किया, और ये राइट बाउंड्री के पार्टिकल को T3 से, और बॉटम बाउंड्री के पार्टिकल को T4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। आप चाहें तो एक ऐसा एक और वो बना सकते हैं जिसमें कि जो चारों सम है, ये चारों सम डिवाइडेड बाय पार्टिकल n, इसका रेशियो भी सेव होता जाए हर एक पॉइंट के लिए। सो दैट विल शो यू कि कितने परसेंट ऑफ पार्टिकल पहुंच चुके हैं, तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कितना कन्वर्ज कर रहा है आपका कोड। नंबर ऑफ स्टेप डिसाइड कर सकते हैं एन की वैल्यू डिसाइड यस, कर सकते यस, एन की वैल्यू बढ़ाने, पार्टिकल ये जो मैक्स है इसकी वैल्यू बढ़ाते जाने पर कितने पार्टिकल्स आपके बाउंड्री बाउंड्री तक पहुंच गए हैं, वो आप पता लगा सकते हैं। या जैसे जैसे मैं कर देता हूँ रेसिड्यू। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये डिफाइन किया मैंने, इज इक्वल टू, सिर्फ ये ले लेते हैं, बस इनसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, मे बी नेक्स्ट टाइम। आ गया ये समझ में आपके? आया तो है तो एक बार और देखना पड़ेगा दोबारा से कौस्तव, रेसिड्यू क्या है ये? देखिए रेसिड्यू क्या कर रहा है कि सबसे पहले जिस भी पॉइंट से स्टार्ट किया, उस पॉइंट से बाउंड्री पर कितने पार्टिकल पहुंचे, लेफ्ट बाउंड्री, टॉप बाउंड्री, राइट बाउंड्री, बॉटम बाउंड्री, उन सारे पार्टिकल्स को सम कर दिया और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल नहीं पहुंचे बाउंड्री तक, तो फिर तो मतलब ये सिमुलेशन बराबर चला ही नहीं ना। और 99% पार्टिकल अगर पहुंच गए तो मतलब बहुत अच्छा आ रहा है रिजल्ट ये।
आपका, ये देखिए ये 289 सेकंड के लिए आया है, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, जो हमारे अभी कितने कितने स्टेप्स के लिए, 2000 स्टेप्स के लिए चला है, ठीक है। दोनों कंपेयर कर देते रिजल्ट्स को। अ, 2000 स्टेप्स ये है, एंड देन 1000 स्टेप्स ये है आपका। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है मेरे को, अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे ना यहाँ पर, स्लाइटली डिफरेंट बट नॉट मच, नॉट मच, ऑलमोस्ट सेम है दोनों ये। क्या कहते हैं, दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे को हल्का सा दिख रहा है, बिल्कुल बहुत मामूली सा, ऑलमोस्ट कन्वर्ज कर गया ये 1000 स्टेप्स में। इसको अगर आप पिछले वाले कोड से कंपेयर करेंगे तो देखिए रिजल्ट्स आपके कैसे दिख रहे थे। फ्लोटिंग स्टेप वाला देखेंगे अगर आप, ये अब देखिए इनको, क्योंकि इसमें रिजोल्यूशन भी बेटर है, बट रैंडमनेस काफी ज्यादा दिख रहा है, और इसमें रिजोल्यूशन कम है, इसीलिए ऐसे आपको खांचे खांचे से दिख रहे हैं, बट रैंडमनेस ऑलमोस्ट नहीं है। देखिए सेम जैसा ही है बिल्कुल। तो ये है एक्सोडस मेथड। So what is the criteria to decide which method we should use? देखिए ये इसमें रैंडमनेस नहीं है इस मेथड में, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। उस वाले जो वेरी फिक्स्ड स्टेप है उसमें भी, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन फ्लोटिंग स्टेप इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग। फ्लोटिंग स्टेप 2D में तो बहुत आसानी चल जाता है, 3D में नहीं चलता आसानी से। क्योंकि क्या है कि 3D में आपको स्टेप देना है जिसमें कि आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन dx dy dz तीनों में मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, बट डिसाइडिंग दैट इज ए लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क। कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड देन x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव। तो इन तीनों को इस तरह से आप वो करना, क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो वन थर्ड रहे तीनों में, इट बिकम लिटिल बिट डिफरेंट, और मे बी नॉट वन थर्ड, बट प्लस डी जेड में 1/6, माइनस डी जेड में 1/6, एंड प्लस डी एक्स में 1/6, माइनस डी एक्स में 1/6, प्लस डी वाई 1/6, 1/6, इस तरह से। सो इट बिकम लिटिल बिट डिफिकल्ट। और तो वी हैव टू बी, वी हैव टू सी कि क्या बेटर है हमारे लिए। आपको आप एग्जैक्टली चाहते हो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, तो ये है मेथड, एक्सोडस मेथड। इसमें वो नहीं मिलेगा आपको, रैंडमनेस नहीं मिलेगा, बट टाइम कंज्यूमिंग है ये। और कुछ दूसरे मेथड्स भी डिवाइस कर सकते हो, हालांकि जो मैंने मेथड बनाया है ये वेक्टराइज मेथड है। पाइथन में ये इससे फास्ट आई थिंक नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसके पहले मैंने फॉर लूप से बनाया था। उसमें फॉर लूप में मतलब ये जो मैक्स है ना, ये 10 करने पर ही इतना ज्यादा टाइम लग रहा था जितना आप 2000 करने पे लग रहा है ये। तो ठीक है, अपलोड कर दूंगा मैं सब, ये देख लीजिएगा। और कुछ पूछना है इसमें क्या? Sorry, all these methods are used for solving the differential equation, because you have given the example of in last example also Poisson Laplace equation and diffusion equation. यस, So यस सभी कर सकते सॉल्व। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से मैंने फिक्स्ड स्टेप से हीट डिफ्यूजन इक्वेशन तो बता दिया था।
फ्लोटिंग स्टेप्स नहीं बताया अभी हीट डिफ्यूजन इक्वेशन, बट आई एम श्योर कि आप बना लेंगे। कोड कोड अपलोड कर देता हूँ मैं, उनको देख लीजिएगा कोड को भी। और फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ डाउट्स होंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। The code means फ्लोटिंग, Discord or ये वाला भी, और फ्लोटिंग मेथड से जो दूसरे कोड बनाए हैं जो कि अभी क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं, वो भी। sir, no, you should not upload that because we can try by ourselves. If we find difficulty, then we can discuss. It will be good. तो ये वाला कोड अपलोड करो, Yes, ये कर देता हूँ कोड अपलोड, ठीक है। we will try to solve other equation by floating method. Then if we will find any difficulty, then we can discuss. Then you can upload. ओके, ठीक है।